expenditure included now. Please remember, give me a minute. Yes, sir. In our 11th standard, we already seen these all three words. Right now, whether I am underlining, concentrate. Capital expenditure देखा था हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था, और एक्सपेंसेस का डेफिनेशन भी देखा था. So now first you tell me that what is the meaning of expenditure quickly. Amount spent by businessman, याद आ रहा है किसी को? For any consideration received by business. Amount spent by, क्या बोलोगे? हाँ, very nice. Harsh, I think you typed correctly. Proprietor. Amount spent by the businessman for any consideration received or benefit received for a business. I am happy with your answer. So, what is the next point now? Then the question arises, sir, what is a capital expenditure? हमने बहुत सारे properties देखे थे, किसी को याद है कुछ? Okay, concentrate. What is capital expenditure? The expenditure which is non-recurring in nature is known as capital expenditure. Yes. And what the another thing we can say? What is the next thing we can say? Bolo? It incurred to increase the capacity of the production. Understood that? What is capital expenditure? Expenditure incurred what? You can say to acquire the fixed asset, which is non-recurring in nature, or increase the capacity of the production. Then what is the revenue expenditure? It is recurring in nature. It required to maintain the day-to-day. It required to spend it to maintain the day-to-day activity. This is a revenue expenditure. Everyone clear? What does exactly it mean? चलो अच्छे से ध्यान दो. इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी तुम्हें बोला? If I acquired any asset, so that is capital expenditure. For example, I purchased the AC from the market, so that is the capital expenditure. Okay, but unless and until I am not able to install the AC, or unless and until I didn't install that AC, can I able to use that AC? No. No. So that installation charges is also what you can say, it is a capital expenditure. So don't judge it by its value, amount. Judge it by its nature. Okay. So while asset is going to be put to use, whatever expenditure you incur for acquiring the asset, transportation charges, carriage charges, installation charges, labor charges, that is what capital expenditure. Okay. So purchasing the AC is a capital expenditure, but repairing that AC after a few months frequently, that is a revenue expenditure. Hopefully everyone understood this. Yes, sir. Okay. So capital expenditure included in revenue expenditure and vice versa. So can you tell me, or I am giving you one example, you try it. Okay. Example लेते हम. Installation wages paid for installation of machinery included in wages. मैंने जानबूझ के ये लिखा है, इससे तुम्हें समझ में आएगा. एडजस्टमेंट. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैंने क्या टाइप किया है? क्या लिखा है? wages paid for installation of machinery included in wages. Now we already seen in 11th standard rectification of errors chapter also. I am not interested now how you will find out wrong entry, correct entry, rectified entry. ये अपने को अभी नहीं करना. But तुम मुझे बोलो, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इससे कुछ एरर समझ में आ रहा है क्या? Wages paid for installation of machinery.
included in wages. ये कौन से टाइप का एरर है? Can you at least identify that? Okay, so please remember this is error of principle. Understood this? Yes. Included in capital or when capital treated as a revenue. अभी समझा? Okay. So what I said, it is an error of principle. Now, tell me this thing. I am saying capital expenditure included in revenue expenditure. So wages paid for installation of machinery included in where? Wages. So can you at least try इसका क्या impact होगा? मैंने ये किस में दिखाना चाहिए था? Expenditure where I should show? Huh? Yes, sir. This expenditure where I supposed to show? trading account debit side. No, don't हाँ say sir, that trading trading debit. or profit and loss. What I am asking, जो मैंने wages paid किया है installation of machinery, वो उसका impact कहाँ होना चाहिए था? Revenue. Capital Machinery में ना, expenditure. Capital. machinery में include होना चाहिए था. But तुमने हाँ उसको किसमें मशीनरी में include इंक्लूड किया? होना चाहिए. Wages में. मशीनरी ये correct है क्या? हाँ हाँ सर. Machinery में होना चाहिए था, पर तुमने उसको include wages में किया. ये correct है वेजेस में क्या? किया. नहीं सर. हाँ. So what is the first impact? It will be deducted from respective फ्रॉम वेजेस. expenditure either हाँ. on debit side of trading Trading. account or profit and loss account. Okay? Clear? Yes, sir. Why? मैंने इसमें देखो ट्रेडिंग क्यों प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, क्योंकि ये वेजेस बोला है ना इन्होंने, इसीलिए ट्रेडिंग में आएगा. और अगर तुम्हें ये समझ में आया तो दूसरा इम्पैक्ट बोलो क्या होगा? इट विल बी, कैन यू आइडेंटिफाई? Asset side. हाँ, it will be added to respective asset on asset side of asset side of balance sheet. balance sheet. Hopefully everyone clear? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. ये तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना. We always know capital expenditure means what? Where you are acquiring the asset and whatever expenditure incurred to acquire the asset is known as capital expenditure. Okay? Yes, sir. Clear? Yes Yes, sir. sir. अभी थोड़ा सा ये सिचुएशन को मैं उल्टा करने वाला हूँ. वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट. क्या? नाउ आई विल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उससे तुम्हें बेटर समझ में आएगा. रिपेयर of machinery included in machinery account. Can you tell me again which is type of error? This is which type of error? This, which is this type of error? वही है सर, प्रिंसिपल ही होगा ना. हाँ, repairs of machinery included in machinery account. अगर तुम्हें ये समझ में आया ना, you can able to answer me. Can you at least try what will be the answer here? सर ये तो रिपेयर्स ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड ये राइट है ना. Repairs of machinery included in machinery. ये right है? अरे हाँ नहीं नहीं ठीक है. हाँ समझा. बोलो. ये होगा It will be मश shown on एसेट. debit side of trading account or profit and loss account because this is your अच्छा, हाँ. expenditure. हम्म. समझ में आया? जनरली ये प्रॉफिट एंड लॉस ही रहता है. एंड हाँ. इट विल बी, क्या बोलोगे? Added. लाइबिलिटी. इट विल बी डिडक्टेड
from the particular respective You. asset on asset asset side on of asset side balance of. sheet. अच्छा. सर ये Everyone वाला वापस understood? समझाओ ना, ये वाला कौन वापस सा? समझाओ ना, अरे देखो, यही वाला. लेट अस अज्यूम मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास, चलो और एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ना एडवांस लेवल का पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल का कंसेप्ट है. सब लोग अच्छे से ध्यान दो. आई विल रिपीट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. Look what I said. Capital expenditure included in revenue. Wages paid for installation of machinery included in wages. मतलब क्वेश्चन में ऐसे समझो, wages rupees 5,000, machinery rupees 50,000 and installation charges of machinery rupees 1,000. Everyone clear? तो Yes, sir. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेडिंग वेजेस कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में. तो टू वेजेस इनर कॉलम कितना है, 5,000. 5,000. ओके. इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी 1,000. और अभी बैलेंस शीट में असेट में जाएगा मशीनरी, करेक्ट ना? हाँ सर. अच्छा. ओके. मशीनरी का वैल्यू कितना बोला था मैंने, 50,000. हाँ 50,000. ओके. सिचुएशन को सब लोग समझो. अभी मैंने क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दो. वेजेस 5,000 है, मशीनरी 50,000 है, पर इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है मशीनरी के 1,000, वो किस में इंक्लूड हुए हैं, वेजेस. वेजेस में. लगे तो इसमें और 6,000. स्पेसिफिकली लिखता मैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी रुपीज 1,000 इंक्लूडेड इन वेजेस. और यहाँ पे फिर से लिखता हूं मैं, ये जो वेजेस मैंने लिखा था ना 5,000, तुम कंफ्यूज नहीं होंगे उसकी वजह से. 5,000 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस. पिक्चर अभी क्लियर है? आई थिंक अभी पिक्चर क्लियर है. ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर. ओके. कॉन्सेंट्रेट. सो वेजेस 5,000 है. अभी तुम बोलो जो इसमें बोला है, वेजेस 5,000 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीनरी 5,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है बोला इसमें, 1,000. 1,000. ओके. मशीनरी 50,000 कॉमा देता मैं. हाँ. ओके. सो तुम लोग क्या करोगे, सीधी सी बात है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी 1,000 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो किस में ऐड होना चाहिए, मशीनरी में. वेजेस में. हाँ मशीनरी में. राइट. इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना ऐड होना चाहिए, 1,000. 1,000. हाँ. तो आउटर कॉलम कितना आ जाएगा, 51,000. नाउ एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और देखो यहाँ पे 2 वेजेस है, तो लेस क्या करूंगा मैं, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन Charges. चार्जेस. हाउ मच इज 1,000. इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो आउटर कॉलम कितना है, 4,000. 4,000. नाउ आई थिंक ये पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा. Oh, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके. सिमिलरली अभी हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं अपने इसमें और ट्राई करते हैं आंसर का. हमने एग्जांपल क्या किया था, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन मशीनरी. तो यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं वैल्यू रिपेयर्स ऑफ मशीनरी रुपीज 5,000. ओके. Yes, sir. रिपेयर्स ऑफ मशीनरी रुपीज 5,000. उसके बाद मशीनरी रुपीज 50,000 एंड repairs of machinery charges
rupees 1000. अभी इन्होंने क्या बोला है सिचुएशन में, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन मशीनरी. अभी जब मैंने ये यहाँ पे लिखा है रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 5000, मशीनरी 50,000, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी चार्जेस 1000, तो इसमें ही हम क्या करते हैं, इंक्लूडेड repairs of machinery. Okay, कृपाल. Yes, sir. repairs of machinery 5000 है, मशीनरी 50,000 है, और इसमें बोला इंक्लूडेड repairs of machinery charges, इंक्लूडेड repairs of machinery charges. Okay, and okay, so अभी repairs of machinery कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस? ये प्रॉफिट एंड लॉस. करेक्ट, repairs on machinery. सर पर ये प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है ना? किसने बोला प्रोडक्शन से रिलेटेड है? रिपेयर ऑफ मशीनरी. प्लीज रिमेम्बर प्रोडक्शन एक्टिव. गुड क्वेश्चन यू एक्चुअली आस्क. अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि प्रोडक्शन के रिलेटेड है तो वो कहा जाएगा फिर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जाएगा, अकाउंट. अदरवाइज कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में Profit and जाएगा. loss. बट जनरली जितने भी रिपेयर्स रहते हैं ना वो प्रोडक्शन के लिए नहीं रहते हैं, वो किसके हाँ लिए राइट रहते हैं? राइट राइट. हाँ, हाँ, समझा. हाँ, हाँ, बट वेरी हाँ. वाइजली यू आस्क. गुड क्वेश्चन, आई लाइक द क्वेश्चन. ओके, सो रिपेयर्स ऑफ मशीनरी कहा जाएगा फिर बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस P&L के अकाउंट डेबिट डेबिट साइड में, साइड. Debit हाँ. side. क्योंकि जनरली मशीनरी तो यूज प्रोडक्शन के लिए ही होता है ना, बहुत हम्म. मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए क्वेश्चन वैलिड है. तो ये हुआ 5000. अभी मशीनरी कितना है मेरा बैलेंस शीट में? 50,000. 50,000. अभी इन्होंने क्या बोला है, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 5000, मशीनरी 50,000, इसमें रिपेयर्स ऑफ मशीनरी चार्जेस है जो 1000 वो इंक्लूड किए. ये करेक्ट है क्या, मशीनरी में इंक्लूड किए हुए? हाँ. करेक्ट है? हाँ. कैसे? नहीं 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 है नहीं है. वो Minus. प्रिंसिपल एरर. हाँ. Minus. लेस Minus. होगा Less. लेस होगा. लेस क्या करोगे? 5,000. 1,000. लेस रिपेयर्स ऑफ Repairs. मशीनरी. ऑफ मशीनरी. कितना लेस करोगे बोलो? 5,000. हाउ यू से 5000? यहाँ पे अच्छे से पढ़ो ना. मशीनरी 50,000, इसमें क्या बोला है, इंक्लूडेड Machinery रिपेयर्स ऑफ charges, मशीनरी चार्जेस. तो रिपेयर्स ऑफ मशीनरी चार्जेस 1,000 कितने? sir. 1,000. तो कितने 1,000. लेस करोगे? 1,000. और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,000. 49,000. और फिर दूसरा इम्पैक्ट क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस क्या करोगे? प्रॉफिट Add. ऐड करेंगे. हाँ. रिपेयर्स Sir. ऑफ मशीनरी. 1,000. 1,000. एड एडिशनल रिपेयर, ऐसे करो. और एडिशनल रिपेयर कितना? 1000. 1,000. आउटर कॉलम में कितना आ 6,000. जाएगा? 6,000. 6000. एवरीवन क्लियर नाउ? Yes, Yes sir. sir. पक्का? अभी Yes, तुम sir. ये लाइफ टाइम नहीं बोलोगे, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. Yes sir. देखो Yes. फिर से एक बार हम इसका एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, शायद अभी तुम्हारा कंफ्यूजन सॉल्व हुआ रहेगा. इफ कैपिटल sir. एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल लॉजिक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल में ही चाहिए तो कैपिटल में ऐड करो और रेवेन्यू में से डिडक्ट करो. ठीक है? हाँ sir. Similarly, when I will say revenue expenditure included in capital, revenue expenditure revenue में ऐड करो, capital में से डिडक्ट करो. लॉजिक समझा? हाँ sir. क्लियर? Yes sir. Okay, very nice. Included in revenue receipt. But इसको मैं टैकल नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे इसके मीनिंग नहीं बोलोगे. कोई तो, और यस, ये लास्ट ईयर के पेपर में आया था, आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज अ कैपिटल रिसीट. इसको हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर में, पर ऑलरेडी ये डेफिनेशन मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है. किसी को याद है? Capital receipt. Capital receipts are receipts that create liability. That Create liability. Liability. oh very nicely said, that is created liability. और थोड़ा सा again as a earlier definition can I say capital receipts are non recurring in nature. हाँ capital. हाँ right.
Correct now? So please Yes, remember, sir. what is capital receipt? The receipts which are non-recurring in nature. जो बार बार होता है क्या वो? नहीं. No. मतलब मिलता है क्या बार बार? Hmm. नहीं नहीं. मिलता है. नहीं. समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा important definition में इसको modify कर सकता हूँ. All such receipts which are non-recurring in nature and not forming a part of regular flow of income of a concern are known as capital receipts, which are not forming the part of regular flow of income. मतलब बार बार नहीं. जैसे कि sale of machinery, हम हमेशा machinery sale करेंगे क्या? नहीं. नहीं. Sometimes ना, once in a while. हाँ. So which are not forming the regular flow of income. इसी से मुझे revenue receipt का definition derived हो जाता है. What is revenue Yes. receipt? Which are forming regular flow of income, which are related to the day-to-day activity of a business. Everyone clear? Yes, sir. So Yes. that is capital receipt and revenue receipt. So income, any kind of a, what is the income? Definition of income. Any kind of revenue itself is a income. Yes, sir. Hmm. Does income and profit are one and the same? Hmm. No. Then what is the profit? Profit is revenue, मतलब margins in revenue और बचा हुआ. Over, can I say in very simplified language, over and above cost is a हाँ. profit, where selling price is greater than Yes. cost price. That's it. ये Yes, सब sir. हमने 11th standard में देखा था. Anyway, हाँ. capital receipt included. Sales include sale of machinery. क्या लिखा है मैंने? Sale include sale of is included in revenue receipt. अभी sale of machinery is a capital, but तुमने वो sales में दिखाया है. ये business का sale है क्या? Goods का sale है क्या? नहीं ना? Correct? नहीं. So what I will say, it will be deducted from sales on. It will be deducted from sales. It will be deducted from sales, trading From account, trading account. credit side. Debit, credit side. समझा? Yes, From sir. trading account, credit side. सबको समझा ये point? हाँ, Yes, sir. sir. Okay. Credit side. अभी देखो फिर से. Now, sales include sale of machinery. जब मैं बोलता हूँ sale of machinery तो very well what ये already तुमने sales में include किया था, उसमें से मैंने अभी subtract किया. But sale of machinery means machinery goes out from the business. Correct ना? तुम जर्नल एंट्री क्या करते थे 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन चैप्टर में सेल ऑफ मशीनरी का? सेल ऑफ मशीनरी का ना. तो Depreciation account debit to sale account. कैश और बैंक टू मशीनरी. वेरी परफेक्ट. इसका मतलब तुम मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस करते थे क्या? नहीं. फिर क्या करते थे? कैश टू मशीनरी मतलब कैश आ रहे है तो मतलब मैं समझा नहीं क्वेश्चन. अरे यू सेड कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. इसका मतलब तुमने मशीनरी का वैल्यू कम किया ना, रिड्यूस किया ना, मशीनरी को क्रेडिट दिया मतलब. बिकॉज हाँ, मशीनरी इज हाँ. असेट हैविंग डेबिट बैलेंस. असेट को डेबिट क्रेडिट बैलेंस. देना मतलब उसका बैलेंस क्या करना? हाँ, बैलेंस कम करना है. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ रे. अच्छा. So, हाँ, हाँ. can समझा. I say it will be deducted from respective asset on asset side of balance sheet? हाँ, So हाँ. this is the thing, say rupees 2 lakh. Hmm. Machinery है rupees 50,000. Sale of Hmm. machinery है rupees कितना लूँ? 5,000 लूँ? 5,000. सेल्स ऑफ मशीनरी. Okay. Can you able to visualize the picture now? यस सर. Okay. At least can you try to do the posting of all these things? चलो तुम मुझे try करो और बोलो. क्रेडिट साइड में सेल्स 22 लाख. Sales. Okay, wait. Buy, sale, 2 lakh. Sales. Very perfect. Inner फिर cost एसेट में मशीनरी.
हाँ असेट में मशीनरी 50,000 करेक्ट 50,000 then ओके और बाद अभी में मैं अभी इसका ये भी हटा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाँ सेल ऑफ मशीनरी ₹5,000 है सो अभी देखो तो एसेट में लेस होगा कितना 5,000 वेरी 1,000 परफेक्ट तो कैन आई से लेस सेल ऑफ मशीनरी 5,000 यस सर वेरी परफेक्ट सेल ऑफ मशीनरी 5,000 चलो 45,000 आगे बोलो फिर मतलब 45 45 आ गया दूसरा सर इफेक्ट क्या करते हैं सर सेल्स में लेस हो जाएगा सेल्स ऑफ मशीनरी वेरी परफेक्ट हाँ आई एम हैप्पी दैट यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट सेल ऑफ मशीनरी कितना 5,000 1,000 तो आउटर कॉलम आएगा 1,95,000 95,000 क्या बात है आई एम वेरी मच हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू अच्छा सर उधर लेस किया इसलिए ऊपर लेस कर दीजिए क्या बोला सर अभी हमने सेल ऑफ मशीनरी लेस किया तो अभी बाय हाँ सेल्स में देखो इंक्लूड था क्यों क्यों ऐसा क्यों किया क्योंकि सेल ऑफ मशीनरी मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू द गुड्स ट्रेडिंग हाँ अकाउंट में गुड्स की रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं ना हाँ इसीलिए वो डिडक्ट किया समझा यस हार्दिक सर अच्छा इधर अभी सेल्स में 2 लाख था ना उसमें ये इंक्लूड था तो हमें हाँ नीचे असेट में रिड्यूस केस लिए ऊपर करना पड़ा था अरे क्योंकि हमने मशीनरी को सेल किया है ना मशीनरी को सेल किया है मतलब मशीनरी का थोड़ा सा पार्ट रिमूव हो गया बिजनेस से हाँ रिमूव हो गया सर लाइक डेप्रिसिएशन चैप्टर ओके Yes, sir. it means not whole the machinery is sale some part of a Sure. machinery is selling out you remember 11th standard में हम देखते थे original cost of machinery 50,000 part of machinery 10,000 costing machinery is sale for 12,000 like that हाँ Yes, sir. समझा यस सर ओके वेरी नाइस अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरली कैन यू आइडेंटिफाई नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कौन सी लेने वाला हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू का कैपिटल परफेक्ट परफेक्ट और इसकी वजह से ही बच्चों का फाइनल अकाउंट बहुत बार टैली नहीं होता है revenue receipt included in capital receipt on investment wrongly included in sale of machinery interest received on investment wrongly included in sale of furniture. Everyone clear the picture? यस सर देखो मैंने क्या लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये किस में इंक्लूड हुआ है सेल ऑफ मशीनरी डज दिस करेक्ट yes नो no so again we have to see in the impact of that can you at least try then हम उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको फिर चलो ट्राई दिस क्या बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर तो तुम इसको क्या करोगे इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्री हाँ क्यों रे yes sir इन्वेस्टमेंट हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम है ना ये हाँ कमीशन रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हाँ सर और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इट विल एसेट साइड as asset एडेड इन एसेट क्यों एडेड इन्वेस्टमेंट में add respective asset on asset asset side of side of balance sheet balance sheet. समझा यस सर ऐसा क्यों रे असेट साइड में क्यों ऐड करोगे इसका एक्सप्लेनेशन बोलो सिंपल है क्या बोला इन्होंने रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर तुम क्या कर रहे हो इंटरेस्ट जो मिला है वो तुम ट्रीट कर रहे हो कि फर्नीचर सेल किया है मेरा फर्नीचर का वैल्यू कम ही नहीं हुआ है तो हाउ कैन यू ट्रीट इट एज सेल ऑफ फर्नीचर दैट्स व्हाई आई हैव टू ऐड बैक टू माय फर्नीचर because Furniture. sale of furniture is a
capital received Capital. and interest on investment is a revenue received. Now you understood this? Yes, sir. चलो इसको हम फिर से इसके फॉर्मेट में देखेंगे, या जो पहले का है वही लेते, एडिट नहीं करना पड़ेगा. 2 लाख. ओके. Hmm. Interest received 3,000. Furniture 50,000. Okay. Interest received on investment. ये यहाँ पे interest received on investment है. Hmm. आ गया सब, पिक्चर क्लियर है. Yes, Yes, sir. sir. Wrongly included in sale of furniture. So अभी तुम इम्पैक्ट क्या करोगे? यहाँ पे तुम क्या करोगे? बाय सेल्स, जो 2 लाख था वो 2 लाख है. अभी हाँ. अपने को लेस करेंगे ना. लेस करेंगे. लेस नहीं करेंगे, सेल में इंक्लूड नहीं है वो. अच्छे से पढ़ो, ये तो ट्रेडिंग का पार्ट हुआ ना. अभी हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. समझा क्या? हाँ हाँ हाँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों Loss account. का. ओके. सो अभी मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ी सी लाइन छोड़ के यहाँ पे सिर्फ बॉक्स बनाता हूँ, क्योंकि टू द एक्सटेंड आई एम प्रिपेयरिंग द अकाउंट, आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके. Yes, sir. तो अभी इन्होंने क्या बोला है? इंटरेस्ट रिसीव 3,000 है और फर्नीचर कितना है? 50,000. तो कैन आई से बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन investment Investment 3,000. 3,000. Clear? Okay, sir. हाँ. Yes, sir. Interest received on investment 3,000. ओके. अभी हम जाएंगे बैलेंस शीट में. फर्नीचर कितना था? 50,000. 50,000. और तुम क्या करोगे इसको? लेस एडेड. Add करें. क्या? इंटरेस्ट Interest लेस इन्वेस्टमेंट. क्लियर? कितना Yes, ऐड sir. करोगे? 3,000. 3,000. तो आउटर कॉलम कितना आएगा? 53,000. 53,000. इसका मतलब ये जो फर्नीचर था, लगे तो तुम लिखो फर्नीचर इंक्लूड सेल ऑफ फर्नीचर. सेल ऑफ फर्नीचर इंक्लूड क्या बोला था इसमें? सेल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. समझा सबको? क्लियर? Yes, sir. 50,000 था, इंटरेस्ट Yes, sir. इन्वेस्टमेंट 3,000 था, सेल था 2 लाख. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं अभी कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको मैंने क्या ट्रीट किया है? सेल ऑफ फर्नीचर ट्रीट किया है. ये करेक्ट है क्या? नहीं. नहीं है. क्लियर? हाँ. ओके. एवरीवन क्लियर टिल हियर? Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट है इसमें? No, sir. श्योर? Yes, sir. हाँ. सर एक बार वो बताना, असेट कौन? साइड में हम ऐड क्यों किया हमने असेट साइड में? इसको मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे ध्यान दे. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर. उन्होंने क्या ट्रीट किया है कि जो मुझे इंटरेस्ट मिला है, मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, वो मैंने सेल ऑफ फर्नीचर ट्रीट किया है. ये करेक्ट है क्या? नहीं. फर्नीचर का सेल है क्या ये? नहीं. ये तो इंटरेस्ट है ना इन्वेस्टमेंट का.
इसलिए जो वैल्यू तुमने फर्नीचर में से डिडक्ट किया था उसको तुम्हें फर्नीचर में क्या करना पड़ेगा, ऐड। add. ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। समझा? श्योर? Yes, sir. हार्दिक? यस सर, समझा। ओके, चलो क्विकली विल रीड दिस फोर्थ एडजस्टमेंट। कैपिटल, कृपाल तूने ये पढ़ा था क्या? नहीं sir. प्लीज रीड दिस। Capital expenditure included in revenue expenses and vice versa. The expenses paid for installation of asset, if such expenses are wrongly included in revenue expenditure, then it should be deducted from revenue expenditure and added to that particular asset. The entry will be asset account debit to expenses account. First effect, add to that particular asset, deduct from the particular expenses in trading अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, हाँ, कृपाल कैन यू अच्छा हाँ प्लीज समझा. रीड अगेन द फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट? Okay. First effect, add to that particular asset in balance sheet, and second effect, deduct from the particular expenses in trading account and profit and loss account. ओके, वेरी नाइस। अभी हम, और देखो हाँ, तुम्हें सिंपल लॉजिक बोलते हो, इसको कैसे याद रखने का। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड किस में हुआ है? रेवेन्यू ना, तो रेवेन्यू में से क्या करो, डिडक्ट करो, और किस में ऐड करो, कैपिटल में। फिर से अगर मैंने ऐसे बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन कैपिटल, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या करोगे, ऐड करोगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या करोगे, लेस करोगे। ओके, Yes, sir. यस कृपाल, रीड दिस। Capital receipts included in revenue receipts and vice versa. Cash receipts which are recurring in nature are called as revenue receipts. Example, rent received, interest received, goods sold, etc. Cash receipts can which are non-recurring in nature account of assets sold, additional capital introduced by partner, etc. are called as capital receipts. So if capital receipts are wrongly included in revenue receipts, then it is deducted from revenue receipts. Example, cash included sales of machinery. The entry will be sales account debited to machinery account. And first effect, deduct from machinery in balance sheet asset side, and second effect, deduct from sales in trading account credit side. And ओके, अच्छा आगे का भी पढ़ो. पढ़ो, कंटिन्यू। Wrongly included in capital, example, interest received. रीड इट अगेन, ये दो लाइन। हाँ, if revenues are wrongly included in capital, example, interest received on investment wrongly included in sale of furniture, the entries will be, क्या होगा? एक मिनट, हाँ, रीड इट। दिस। The entries were furniture account debit to interest on investment account, and the first effect will be add in furniture asset side of balance sheet, and second effect profit and loss account credit side. Hopefully everyone clear now. Yes, sir. Yes, sir. Sure है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just 1 minute, हाँ. Hmm. इन्होंने क्या किया है, नए 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है अभी। रेवेन्यू रिसीव इंक्लूड इन कैपिटल, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड। चलो इसको ट्राई करो अभी। 21 नंबर का पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? हाँ. अभी हमने क्या पढ़ा, रेवेन्यू वाला ही पढ़ा है ना, रेवेन्यू रिसीव इंक्लूड है। हाँ. देखो क्या बोला है, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। डज इट करेक्ट? नॉर्मल नहीं. सेल ऑफ गुड्स से हमने क्या कंसीडर किया है,
सेल ऑफ Sale फर्नीचर, of- करेक्ट है क्या ये? फर्निशिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स से लेस होगा शायद। ना ट्राई करो ना, दोनों इफेक्ट ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे वैसे आंसर लिखा हुआ है, उसको इग्नोर करो और ट्राई करो। तो इसका मतलब तुम्हें समझा ही नहीं है। एक्चुअली ये टेक्स्ट बुक में इन्होंने नहीं ना सर, मिस्टेक आ रहा है। किया है। हाँ सर देखो समझ रहे हैं। क्या क्या होना चाहिए था? एक तो सिंपल लॉजिक है, रेवेन्यू रिसीव इंक्लूडेड इन कैपिटल, मतलब सेल ऑफ गुड्स तुमने क्या ट्रीट किया है? सेल ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर। तो सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू में, तो वो किस में? सेल्स में ऐड होना चाहिए। ये थॉट में हाँ। किसी को कुछ डाउट है? नहीं। श्योर? यस सर। And similarly, if you are treating it at sale of goods as a sale of furniture, तो फर्नीचर का वैल्यू तुम क्या कर रहे हो? लेस करेंगे। हाँ, नहीं, फर्नीचर का वैल्यू तुम क्या कर रहे हो बाय सेइंग सेल ऑफ फर्नीचर? लेस ऐड कर कर रहे हो ना, तो हम उसको कर रहे क्या हैं। होना चाहिए? ऐड। हाँ, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, समझ में आया? यस सर। हाँ। तुम लोगों ने ये आंसर पढ़ के बोला शायद, लेस टू फर्नीचर, है ना? एवरीवन क्लियर? बोले। यस सर। हाँ सर। श्योर है ना? लॉजिक क्लियर है ना? तुमने गुड्स को सेल किया है और तुमने उसको क्या ट्रीट किया? सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब तुमने फर्नीचर में से वो वैल्यू ऑलरेडी डिडक्ट किया है, तो हाँ, तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड Add करना पड़ेगा। अभी हमने जैसे किया ना, ट्रीटिंग एज सेल ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट वाला। यस सर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। कैन आई कंक्लूड यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर? बहुत सारे Yes, इंपॉर्टेंट sir. एडजस्टमेंट हमने देखे, प्लीज रिवाइज करना इसको, so that we can continue tomorrow, and definitely tomorrow now all adjustment going to be finished. We'll do our pray. मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित पावनी पतित पावनी हेतु की कृपा से हेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय त्याग में का बल त्याग का बल एवं एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय सेवा में का बल सेवा का बल प्रदान करे, प्रदान करे, जिससे वे जिससे वे सुख दुख के बंधन से सुख दुख से बंधन से मुक्त हो। मुक्त हो। आपके पवित्र प्रेम का आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। कृतकृत हो हरि जाए। शरणम, हरि श्री शरणम। गुरब्बे नमः। Take care, stay at home, don't go outside.